Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey, and today I am going to start part 4 of chapter 1, that is plant and animal tissue. So students, in the previous video we have gone through the complex permanent tissue, that is xylem and phloem, and today's topic is animal tissue. So let's start with the flow chart. Students, before going through the flow chart, we will discuss some basic points of animal tissue. Just like the plants, the body of animals follow the same level of cellular organization. As you know that your body is made up of cell and the combination of cell is known as tissue. So basically like plants, जैसा कि हम लोगों ने plants में पढ़ा कि जो plants होते हैं उनमें जो basic structural unit होती है वो cell होती है और सेल का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, टिश्यू, एंड टिश्यू का कॉम्बिनेशन ऑर्गन बनाता है, वेयर एज ऑर्गन का कॉम्बिनेशन ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम का कॉम्बिनेशन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बनाता है. सो द सेम इज हियर इन एनिमल ऑल्सो, कि जो हमारा एनिमल है उसकी जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल है. Okay, in animals the tissue are specialized to form a certain set of function. Animals में क्या होता है, जो टिश्यू होती हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू को एक जगह पर सिस्टमेटिक वे में रखा जाता है जिससे वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन को कर सकें. सो एनिमल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज. जो एनिमल टिश्यूज होती हैं वो 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं. फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, second is connective tissue, third is muscular tissue and fourth is nervous tissue. फ्लो चार्ट को ध्यान से देखेंगे. जो एनिमल टिश्यू है वो 4 मेन टिश्यू में डिवाइड होती है. पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा है नर्वस टिश्यू. ओके, एपिथेलियल जो टिश्यू हैं ये फर्दर 5 टाइप्स की होती हैं: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर. वेयर एज कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो 3 तरह की होती है. फर्स्ट वन इज एरियोलर, सेकेंड वन इज एडिपोस एंड थर्ड वन इज फिब्रस. वेयर एज स्केलेटल, द कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू स्केलेटन. फर्स्ट वन इज बोन and second part is cartilage. The connective tissue has third part which is fluid, and the fluid is also divided in 2 parts, that is blood and lymph. जो connective tissue होती है वो basically 3 types की होती है: connective tissue proper, फिर skeletal and fluid. fluid में 2 part होते हैं, blood and lymph. skeletal में भी 2 part होते हैं, bone and cartilage. Whereas connective tissue proper has 3 types: areolar, adipose and fibrous. जो fibrous हैं that means fibers की condition जो है उनमें भी 2 part है. First one is tendon and second one is ligament. Beside that animal tissue, the third part of animal tissue is muscular tissue. These muscular tissue is further divided into 3 parts, that is striated, smooth and cardiac. And the last part of animal tissue is nervous tissue. Okay, so this was the classification of animal tissue. Your assignment work is just draw this flow chart and write 1 or 2 lines about each and every types. Okay, so we will discuss each and every type of these tissues in detail one by one. So first one is epithelial tissue. I have already told you that where epi word is present, if you see EPI word anywhere, just remember one thing, that it will discuss the outermost layer of anything. Epidermis. क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो हमारी बॉडी में स्किन के बाद प्रेजेंट होती है. स्किन के बाद जो सबसे ऊपर का जो टिश्यू होती है, जो मसल होती है, वो एपिथेलियल होती है.
epithelial tissue are made up of closely packed cell that are arranged in flat sheet. epithelial tissue जो होती है ये closely packed cell से बनी हुई होती है जो कि अरेंज होते हैं फ्लैट शीट के जैसे, फ्लैट शीट के जैसे ये अरेंज्ड होते हैं. सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर डिस्कस बिलो. एपिथेलियल टिश्यू के जो कुछ फंक्शंस हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं. These tissue form the outer lining of various organ of the body. ये जो टिश्यू होते हैं ये आउटर लाइनिंग फॉर्म करते हैं वेरियस ऑर्गन के. जैसे आपकी बॉडी है उसका जो आउटर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है. ऐसे ही कोई भी ऑर्गन लाइक लिवर ही है उसका जो सबसे आउटर लेयर होगा वो एपिथेलियल टिश्यू का होता है. दे एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में. लाइक स्किन है, स्किन आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है स्किन उसको भी देख रही है और बॉडी के बाहर लाइक एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है स्किन उसको भी ऑब्जर्व कर रही है. तो स्किन क्या हुआ वो एपिडर्मिस का भी वर्क कर रही है. तो उसी तरह से एपिथेलियल टिश्यू भी होती हैं. These tissue form the surface of the skin. ये जो होती है ये टिश्यू वो स्किन के सरफेस को भी फॉर्म करती हैं. द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज एंड कवर द इंटरनल ऑर्गन एज वेल. ये क्या करती हैं जो बॉडी कैविटी है लाइक जो आपका ईसोफेगस है उसकी जो अंदर की लाइनिंग है ऊपर की जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की होती है. इवन इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके बॉडी के उनका जो वॉल है वो भी एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है. दे प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट लाइट. ये हमारी स्किन को अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्ट करती हैं. मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करती हैं. जैसे कि कहीं भी चोट लग गई हाथ जल गया तो एपिथेलियल टिश्यू ही डैमेज होती हैं. अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रिवेंट करती हैं और वो डैमेज हो जाती हैं. डिहाइड्रेशन एंड इन्वेजन बाय बैक्टीरिया. मतलब आपके स्किन के ऊपर कुछ भी हो जाए सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू ही डैमेज होती हैं. इवन आपकी बॉडी में भी आउटर लेयर में कुछ भी हो रहा है आपके पेट में अल्सर हो रहा है कोई भी बीमारी हो रही है तो वो एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले डैमेज होता है. दे ऑल्सो लाइन एयर पैसेज एंड द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स. ये लंग्स में जो एल्वियोलाई है जहाँ पे आपका ऑक्सीजन जाता है आता है वो वहाँ पर भी ये इनर लाइनिंग और आउटर लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं. कौन एपिथेलियल टिश्यू. ओके. डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड देयर फंक्शंस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन हायर क्लासेस. कह रहा है कि इसके जो टाइप्स हैं स्क्वेमस क्यूबॉइडल कॉलमनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर इनका डायग्राम आपके सामने है और इनके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. सेकेंड पार्ट इज कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द एनिमल बॉडी. जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मोस्ट अबंडेंट है मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है हमारी बॉडी में. दीज टिश्यू हैव स्पेसेस बिटवीन देयर सेल. ये जो टिश्यू होती हैं इनमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं. एपिथेलियल टिश्यू में स्पेसेस बहुत कम थे ना के बराबर थे. विच आर फिल्ड विथ मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस. ये जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें फ्लूइड या जिलेटिनस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. ठीक. जिलेटिनस मैट्रिक्स क्या होता है एक फ्लूइड होता है जो कि जेली टाइप का होता है. दे लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यू एंड ऑर्गन बाय फिलिंग अप द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स. ये क्या करती हैं जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं ये फ्लूइड के जैसे होती हैं और सपोज दो ऑर्गन है उनके बीच में ये फिल्ड होती हैं जिससे उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स. अपने फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये फर्दर डिवाइड हुई हैं डिफरेंट टाइप्स में. फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज मसल टू बोन. जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होती है ये डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करती है जैसे कि मसल को बोन से हड्डी को
मांस से। ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यू उसका एक टाइप है जो कि है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द बॉडी। ये जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये बॉडी में पूरी तरीके से फैला हुआ होता है। These tissues serve as the packing material for the majority of organs in the body. ये जो होते हैं ये पैकिंग मटेरियल का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। These are of two types. ये दो तरह के होते हैं, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो होता है ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें इलास्टिक फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं और कोलेजन यानी कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, एरियोलर टिश्यू स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं और इनमें इलास्टिक फाइबर और प्रोटीन यानी कि कोलेजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसका फंक्शन होता है कि ये स्किन और मसल को अटैच करते हैं, मतलब जो आपके चमड़ा है और आपके चमड़े के नीचे जो मसल है उनके बीच में ये फिल होते हैं, पूरे स्पेस को भरे हुए होते हैं और स्किन और मांस के बीच में फेविकोल का काम करते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। उसके बीच में गैप्स को फिल किए होते हैं और कनेक्टिविटी का काम करते हैं। ठीक है, तो कौन होता है वो एरियोलर टिश्यू। सेकेंड वन इज एडिपोज टिश्यू। दीज टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। जो एडिपोज टिश्यू होता है इसका स्पेशल फंक्शन होता है कि ये फैट को स्टोर करते हैं। इट इज़ फाउंड बीनीथ द स्किन, और ये स्किन के नीचे ये भी पाए जाते हैं। ठीक, इन द लाइनिंग ऑफ हार्ट अराउंड द ब्लड वेसल एंड इन द किडनी। ये जो एडिपोज टिश्यू होती हैं इनका काम होता है फैट को स्टोर करना। ये प्रेजेंट होती हैं स्किन के नीचे, हार्ट की लाइनिंग में और ब्लड वेसल्स के किनारे किनारे और किडनी के किनारे किनारे। ठीक है, द मैट्रिक्स ऑफ एडिपोज टिश्यू इज पैक्ड विद एडिपोसाइट। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनका जो मैट्रिक्स होता है, जो उनका स्पेस होता है, सेलुलर स्पेसेस, वो पैक्ड होता है एडिपोसाइट सेल से। एडिपोसाइट मतलब टाइप ऑफ एडिपोज सेल, उनसे फिल्ड रहता है और जो कि स्फेरिकल और ओवल शेप के होते हैं। इनका फंक्शन होता है इट इंसुलेट द बॉडी अगेंस्ट हीट लॉस। ये क्या करता है, बॉडी के हीट को लॉस होने से बचाता है। ठीक है, नाउ वी हैव द सेकेंड टाइप, fibrous or dense connective tissue. These tissue have more fiber than the loose connective tissue. पहला था loose connective tissue जो कि loose था, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस को फिल करता था, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस था जो दो लेयर्स के बीच में गैप्स को फिल करता था। लेकिन अब जो सेकेंड टाइप है ये फिब्रस और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो कि फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ये इनमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ये डेंस होती हैं, मतलब बहुत ही घनी होती हैं इन कंपैरिजन टू लूज कनेक्टिव टिश्यू। दीज फाइबर्स आर वेरी लूज। फाइबर तो इसका लूज होता है लेकिन ये प्रेजेंट होती हैं बहुत घने, उसमें स्पेसेस इनमें कम होते हैं और इनका जो नेचर होता है वो इलास्टिक होता है, मतलब जैसे रबड़ को खींचो तो वो खींचता है, उसी तरह से इनमें भी इलास्टिसिटी होती है इस टाइप की मसल्स में। दे आर ऑफ टू टाइप, टेंडन्स एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट इसके दो एग्जाम्पल हैं। ये जॉइंट्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि घुटने हुए आपके, आप फोल्ड करते हैं, नीचे भी बैठ जाते हैं, खड़े भी हो जाते हैं, तो जो घुटना है आपका वहाँ पे जो मसल है उनमें इलास्टिसिटी है, तभी तो वो फैल रही है और सिकुड़ रही है। टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन। जो टेंडन्स होते हैं वो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। दे आर कॉर्ड लाइक इनइलास्टिक बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर बाउंड टुगेदर बाय एरियोलर टिश्यू। ये कॉर्ड जैसे होते हैं, डिस्क जैसे होते हैं मतलब, और ये इनइलास्टिक होते हैं, मतलब ये खींचते नहीं हैं, अपनी जो पोजीशन होती है उसी में प्रेजेंट रहते हैं। इनमें प्रोटीन यानी कि कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है और ये एक दूसरे से
बंधे हुए होते हैं एरियोलर टिश्यू से। एरियोलर टिश्यू क्या करता है, इलास्टिक और स्टिकी होता है जो गैप्स को फिल करता है। तो टेंडन्स फाइबर जो होते हैं उनके ऊपर एरियोलर टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होती है जो उसको बाउंड करके रखती है। वेयर एज लिगामेंट, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। लिगामेंट क्या करते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। टेंडन्स बोन को मसल से करते थे और लिगामेंट बोन को बोन से करते हैं। दे आर इलास्टिक, और लिगामेंट क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं और ये येलो इलास्टिक फाइबर के बने हुए होते हैं। नाउ वी हैव स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। पहला था हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर था फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड नाउ वी हैव स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्केलेटल टिश्यू जो होती है वो बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, और इनको सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की होती हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। पहली है बोन और दूसरी है कार्टिलेज। बोन, इट इज़ द मेन सपोर्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर जो दे रहा है वो बोन देता है, मेन सपोर्ट जो देता है वो बोन देता है। बोन्स आर हार्ड एंड रिच इन कैल्शियम। बोन जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कैल्शियम में रिच होते हैं और प्रोटीन उनमें ज़्यादा होती है। बोन कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। बोन्स में ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होती हैं। दे प्रोवाइड ए स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करती है। जैसे आपकी बॉडी कैसी है, तिरछी है, मिर्ची है, टेढ़ी है, लंगड़े हैं, क्या है, कैसी भी बॉडी है, ये बोन से ही डिसाइड होता है। ओके, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट मैनी डेलिकेट टिश्यू और ऑर्गन। ये क्या करती है, बहुत सारी जो डेलिकेट सॉफ्ट टिश्यू होती है, ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि आपकी रिब केज है, रिब केज के अंदर लंग्स बचे हुए प्रेजेंट होते हैं, हार्ट आपका प्रेजेंट होता है जो कि प्रिवेंट करता है रिब केज, हार्ट और लंग को, कि वो किसी भी बाहरी चीज़ों से वो अफेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल रिब केज मैंने पहले ही बताया। नाउ द सेकेंड टाइप इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज। जो कार्टिलेज होता है वो आपके नाक के एकदम टिप में प्रेजेंट होता है, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है। एक्सटर्नल ईयर जॉइंट, और आपका जो कान होता है, बाहर जो कान का ईयर पिन आप जो पकड़ सकते हो कान का, वो भी कार्टिलेज होता है। एंड बिटवीन बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, उनके बीच में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो उनको ज्वाइन किए होते हैं, जिससे आप नीचे झुक सकते हो, खड़े हो सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। तो वो कैसे होता है, कार्टिलेज के प्रेजेंट होने की वजह से। देयर इज नो ब्लड सप्लाई टू द कार्टिलेज। जो कार्टिलेजेस होते हैं इनमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। इट एब्जॉर्ब स्ट्रेस एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट। ये क्या करता है, स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। द एंटायर स्किन ऑफ अ शार्क इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। जो शार्क होती है उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो कार्टिलेज की ही बनी हुई होती है। नाउ वी हैव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो इन today only. Fluid connective tissue link different part of the body. They comprise blood and lymph. Fluid connective tissue का नाम ही कनेक्शन है, तो मतलब कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन शो करेगा। ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज ब्लड एंड सेकेंड वन इज lymph. Blood transport nutrients, hormones, vitamins and the excretory product from the tissue and to the liver and the kidney. जो ब्लड होता है वो न्यूट्रिएंट्स को, हॉर्मोन्स को, विटामिन्स को एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को टिश्यू से डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है, लाइक लिवर तक या किडनी तक। द ब्लड कंसिस्ट ऑफ सेल एंड प्लाज्मा। जो ब्लड होता है वो सेल और प्लाज्मा का बना हुआ होता है।
सेल उसमें होती हैं आरबीसी, राइट ब्लड कार्पसेल्स, WBC, that means white blood corpuscles, and platelets. Along with that, it has plasma, which is the fluid which contain all the three components of blood. The liquid part of the blood is called plasma. Yes, the liquid part of blood is called plasma. Cell in the blood are of three types. जो blood में cells होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, RBC, WBC और platelets. Platelets क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि खून का थक्का जमाती हैं. वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी को प्रिवेंट करती हैं. हमारी बॉडी की जो लड़ने की क्षमता होती है वो यही WBC की वजह से ही होती है. और RBC जो होती हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स and how they flow in the blood vessel. It is also shown in the figure below. Second type is the fluid connective tissue. Its second type is lymph. Lymph is a colorless fluid. Lymph जो होता है वो colorless fluid होता है. It does not contain RBC and blood protein. जो lymph होते हैं इनमें RBCs, red blood cells नहीं होते हैं, ना ही इनमें ब्लड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं. इट कंटेन्स अ मेजॉरिटी ऑफ वाइट ब्लड सेल. लिम्फ जो होती है इनमें वाइट ब्लड सेल्स की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है. इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू द हार्ट फॉर सर्कुलेशन. ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हार्ट तक ले जाते हैं जिससे ब्लड का सर्कुलेशन हो सके. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन. ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेक्शन से. द नेटवर्क ऑफ वेसल्स विद इन विच lymph flow is called lymphatic system. जो वेसल जिनमें lymph फ्लो करता है उनको lymphatic vessel कहते हैं और जो सिस्टम lymphatic vessels को कंडक्ट करवाता है उसको lymphatic system कहते हैं. So in today's lecture we have discussed about fluid connective tissue. Then after we have discussed skeletal connective tissue. Before that fibrous connective tissue, and before that we have discussed loose connective tissue. In today's lecture we have gone through the two types of animal tissue. First one is epithelial tissue and second one is connective tissue. Okay, so we have muscular and nervous tissue that we will discuss in the next video. So that's all for today guys. Thank you everyone.